اسی میں آپ سب کو سلام۔ آئے ہم آج کی عبادت کا آغاز جو ہے وہ خداوند کے نام سے کریں گے۔ جتنے بھی لوگ اس وقت عبادت کے لیے جمع ہیں اس میٹنگ میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آئے سب لوگ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں دیکھ ہم تیری حضوری کے اندر آتے ہیں۔ رب آپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو وفادار خداوند ہے، تو ہر ایک کام کے اندر اپنے لوگوں کے لیے بھلائی کو پیدا کرتا ہے۔ ہم تیری تمام بھلائیوں کو اور تیری وفاداریوں کو یاد کرتے ہیں خداوند، اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ گزرے ہوئے تمام دنوں کے لیے اے باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں جن کے اندر تو نے ہمیں سنبھالا، ہماری رہنمائی کی، ہمیں فضل دیا خداوند کہ ہم تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، اور آج کے دن تو نے ہمیں اپنی حضوری میں جمع کیا خداوند۔ یہ ہماری نیکوکاری نہیں ہے بلکہ خداوند کی طرف ہے کہ ہم تیری حضور جمع ہیں۔ اس لیے خداوند آج کی میٹنگ کے سارے ماحول کو ہم تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، اور خداوند ہم مل کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ آج تیرا پاک روح ساری میٹنگ کے اندر ہمیں لیڈ کرے خداوند۔ جب ہم پرستش کرتے ہیں خداوند تیرا روح القدس اس میں ہمیں گائیڈ کرے، ہماری رہنمائی کرے۔ خداوند جب تھاٹ شیئرنگ ہوتی ہے تو خداوند اس پرسن کو بھی برکت دے اور اس کے دل کے اندر اپنے خیال کو ڈال دے، اور جتنا بھی وقت ہم تیری حضوری میں گزاریں خداوند ہم تجھ سے برکت پائیں، اور ہم اپنا آپ مکمل طور پر تیرے سامنے پیش کر دیں خداوند۔ ہمیں فضل دے کہ ہم روح اور سچائی سے تیری پرستش کریں تاکہ تیرے نام کو جلال ملے، مسیح کے نام میں آمین۔ آئے ہم پرستش کریں گے اور بھائی ایمینول کے ساتھ مل کر ہم گیت گائیں گے اور خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ Praise the Lord. خدا ان کی تعریف ہو، ہم سب مل کر خدا ان کی پرستش کریں گے، اس کے نام کو دھنیہ کہیں گے، اس کی جے جے کار کریں گے۔ ہم گیت گائیں گے، تیرے کلام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں، تیرے کلام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں، تیرے کلام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں، میٹھے تیرے نام دیاں گلاں، 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 میٹھے تیرے نام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں، تیرے کلام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں، ایتھے تھوڑی زندگی کچھ بنا دارا میں، رات بے چینیاں تے دن بدنامے، سدا دے آرام دیاں گلاں، 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 سدا دے آرام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں، تیرے کلام دیاں گلاں سچی جان۔ ہیلو مناہم، آپ کنٹینیو جو کر سکتے ہو۔ ہی از ہیئر۔ ایمینول آپ کا مائک بند ہے۔ ایک دن چھڑ جانا اس دنیا دے شہر نوں، جدوں اسی اڈ جانا ناصری دے شہر نوں، اب دی نجات دیاں گلاں
अब दी नजात दियां गल्लां, 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 सच्ची जान पा दिंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां, सच्ची जान पा दिंदियां। दुखां दी दुपहर जदों आण के जलांदी ए, अदन दे बाग दी सवेरी याद आंदी ए, ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां, ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां, ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां, सच्ची जान पा दिंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां, सच्ची जान पा दिंदियां। मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, सच्ची जान पा दिंदियां। ओ सच्ची जान पा दिंदियां, ओ सच्ची जान पा दिंदियां। Amen. Hallelujah. भाई मैनुअल ने बड़ी खूबसूरती के साथ प्रस्तुति की और हम सब ने उनके साथ मिलकर प्रस्तुति की और खुदा के नाम को जलाल दिया। और थैंक यू ब्रदर इमैनुअल। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा भला खुदा है। वो इस लायक है कि हमारे एक बात में जो है वो उसकी शुक्रगुजारी करें। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम खुदा के बंदा भाई यकूब बच्चन के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। बाकी सब जो है वो भाई के साथ मुत्तफिक होकर आमीन कह सकते हैं। आसमानी जिंदा खुदावंद, दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं गुजरे सारे वक्त की बड़ी निगहबानी हिफाजत के लिए। खुदावंद तूने सारे वक्त में बड़ी मदद और हिफाजत की। खुदावंद इस वक्त के लिए भी तेरे आगे सरनगू हैं खुदावंद कि तू हमारी दुआओं इल्तिजाम मिन्नतों को सुनता है और हमें तैयार करता है कि हम इसी तरह तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। खुदावंदा तुझसे मदद मांगते हैं, रहनुमाई मांगते हैं कि खुदावंदा तू अपने लोगों जैसे कर ले खुदावंदा, ताकि हम भी कह सके खुदावंदा ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम कहाँ जाएं। वो खुदावंदा तो हमें सीधा राह दिखा, अक्ल दनाई अता कर खुदावंदा। हमारे घरानों से हर तरह की बीमारी परेशानी दुख मुसीबत को दूर कर खुदावंदा। और जितने भी भाई बहन खुदावंदा आज की मीटिंग में मौजूद हैं उन सबको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावंदा। और जो खुदावंदा अभी आ रहे हैं खुदावंदा उनकी मदद और हिफाजत कर खुदावंदा, उनकी रहनुमाई कर खुदावंदा, उनके साथ हो बाप। दुआ करते हैं चेयरमैन साहब के लिए और बाकी जितने भी मेंबरान हैं खुदावंदा, सबको तो अपने पाक हाथों के नीचे ले खुदावंदा। और खुदावंदा इल्तिजा मिन्नत करता हूँ आने वाले प्रोग्रामों में तो हमारे साथ होना, हमारी मदद और हिफाजत करना खुदावंदा। सारी तंगदस्ती पे पैसे की कमी को तो गैबी खजाना से खुदावंदा पूरा करना खुदावंदा। और खुदावंदा वतन पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं तो खुदावंदा सारी दहशतगर्द की खुदावंदा कार्रवाइयों को खुदावंदा तेरे यीशु नाम से ख़त्म करते हैं। और खुदावंदा सुलह अमन और सलामती के रूह को खुदावंदा मांग लेते हैं। तो हमारी मदद और हिफाजत करना खुदावंदा, हमारे साथ होना और खुदावंदा हमें अपने नाम और कलाम के लिए तैयार कर खुदावंदा। इबादत के शुरू से आखिर तक तो हमारे साथ होना। इस वक्त की दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे अब्दी और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी वक्त है कि हम खुदा के कलाम में से तलावत को सुने। सो आए जितने भी लोगों के पास कलाम मुकद्दस है सब लोग अपने पास जो कलाम मुकद्दस है उसको खोलें और हम खुदा के कलाम में से पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा बाब और हम उसकी 11वीं और 12वीं आयत की तलावत सुनेंगे। सो मैं खुदावंद की बंदी मिसेस समीना आशिर को दावत दूंगी कि वो हमें आज की तलावत में हमारी रहनुमाई करें।
مسیح میں آپ سب کو سلام۔ پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت پہلا تسلنیکیوں اس کا دوسرا باب اس کی 11 اور 12 آئے۔ چنانچہ تم جانتے ہو کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے اور دلاسا دیتے اور سمجھاتے رہے، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو، جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے۔ آمین۔ خدا ان کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ آمین۔ ابھی وقت ہے کہ ہم تھاٹ شیئرنگ کی جائے اور خدا کے کلام میں سے جو ہے وہ آج کے روحانی خیال کو ہمارے ساتھ شیئر کیا جائے۔ سو ہمارے درمیان خدا کی خادمہ ایونجلسٹ کرسٹینا نذیر موجود ہیں۔ میں انہیں دعوت دوں گی کہ وہ آج کی تھاٹ شیئرنگ میں ہماری رہنمائی کریں۔ سوری جی، میں آپ سب کو سلام۔ میں اپنے تھاٹ شیئرنگ متی 7 باب اس کی 7 آیت سے لے کے 7 اور 8 دونوں آیا۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ کلام مقدس کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے مطابق انجیل مقدس میں جو کچھ پڑھا گیا، یہ انجیل مقدس میری شخصی زندگی پہ بھی مقروع ہوتا ہے، کیونکہ میری شخصی زندگی میں ایک ہفتہ پہلے بہت زیادہ میری وابلہ، میں جسمانی پرابلم میں تھی، جہاں تک پرابلم تھی کہ میں بول بھی نہیں سکتی، بہت کم بولتی تھی اور جسمانی بہت زیادہ کمزور تھی۔ لیکن میں اپنے دل میں ہمیشہ یہی خیال کرتی تھی کہ آئے خدا شفا تیرے ہاتھ میں۔ شفا کے ساتھ ساتھ ہماری گروپنگ جو ہوتی تھی، بھائی عاشر، شبانہ صفدر، دونوں میرے ساتھ تھے، ہم تینوں دعا میں مشغول تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ میں بہت زیادہ لاغر ہو گئی، بچے میرے ساتھ تھے لیکن میرے سے بالکل بولا نہیں جا رہا تھا، بہت تکلیف میں تھی، لیکن بھائی عاشر اور شبانہ دونوں پریئر کر رہے تھے ریگولر۔ میں ڈاکٹرز کے پاس جا رہی تھی تو وہی ڈاکٹرز اس پرابلم کو ڈائگنوز نہیں کر پا رہے تھے کہ پرابلم آخر کیا ہے۔ لیکن جس دن زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے میرے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ حالانکہ چھٹی کا دن تھا، چھٹی کا ٹائم تقریباً، تو نذیر صاحب جب مجھے لے کے گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو میں اپنے دل میں یہ سوچ رہی تھی، دعا کر رہی تھی ساتھ ساتھ کہ خدایا جس کے پاس مجھے یہ لے کے جا رہے ہیں، اپنا لہو ان کے ہزاروں، ان کے ہاتھوں، ڈاکٹر صاحب کے دماغوں، اور اپنے دل دماغ میں جو کچھ وہ سوچے میرے لیے مؤثر ثابت ہو۔ وہی ڈاکٹر جو مجھے اتنے دن سے ٹریٹ کر رہے تھے، اس دن ایسے ہوا کہ جو چیز انہوں نے ڈائگنوز کی وہ میرے لیے باعث مقدس ٹھہری، باعث برکت ہو گئی، اور ابھی میں آپ کے سامنے صحت مند، تندرست، اور خداوند کا شکر ہے کہ بآواز آپ سے بات کر رہی ہوں۔ میں خداوند کی بے حد شکر گزار ہوں، اور یہ ساری چیزیں اس پر پوری اترتی ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ جب ہم مل کر مانگتے ہیں تو خداوند
ज्यादा उसमें बरकत डालता है। लेकिन एक चीज है कि एक वक्त तयन है, वक्त पे वो चीज देता है। जरूर हमें 3 दिन इस बात को लगे, लेकिन वक्त मुकर्रर था कि किस दिन मुझे शफा मिलनी है। ये थॉट मैंने मत्ती 7 बाब में से इसलिए लिया कि हम ये आयत बहुत दफा पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसको शख्सी जिंदगी में आजमाया जाए तो ये वाकई ही हमारी जिंदगियों के लिए बहुत ही मौसर है। कभी अपना दिल ना छोड़े, कभी हिम्मत ना हारे, बल्कि खुदावंद के आगे झुकते रहे और सिजदा करे और खुदावंद का हर लम्हा शुक्र करे, क्योंकि शुक्र के लायक वो ही ज़ात है। थैंक यू वेरी मच। और सॉरी भी करती हूँ कि मेरा माइक जल्दी ओपन नहीं हुआ, जो टाइम मैंने लिया उसका सॉरी करती हूँ। आप सब के लिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आप मेरे साथ हैं दुआ में, और आज मैं आपके साथ शामिल हूँ। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। अभी हम सब ने जो है वो इस रूहानी ख्याल को सुना जो खुदा ने अपनी बंदी के दिल में डाला, और इस ख्याल को पेश करने के साथ साथ उन्होंने अपनी टेस्टमनी को हम सबके साथ शेयर किया। जब हम खुदा से मांगते हैं तभी खुदा हमें देता है, और उन्होंने ये बोला कि खुदा अपने राइट टाइम पे देता है। हमें हमेशा बेस्ट टाइम का वेट करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम जस्ट वेट करते नहीं। मैंने कलाम मुकद्दस में से एक बात सीखी है कि जब हम किसी चीज का इंतजार करते हैं तो उसके साथ साथ अपनी स्ट्रगल को रोक नहीं देना चाहिए। कुछ वेट इस तरह का होता है जो हम बैठ कर करते हैं, और कुछ इंतजार इस तरह के होते हैं जिसके साथ मेहनत हो जाती है। लेकिन हमें मसीह में रहते हुए ऐसा इंतजार करना है जिसमें हम अपनी स्ट्रगल को जारी रखना है। तो आए आज की इस खूबसूरत और बाबरकत थॉट के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदा की बंदी के लिए हम दुआ करेंगे। मैं चाहूंगी आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के इस खूबसूरत थॉट के लिए और इस अच्छी और मजबूत गवाही के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे, और मैं दरख्वास्त करूंगी मिसेस सजाद से कि वो हमें इस दुआ में लीड करें। शायद उनका माइक बंद है। ये साजिद हेलो। जी साजिद भाई जो है बहन जो है दुआ करेंगी, आप अपना माइक खोलें। आई थिंक वो ट्राई कर रहे हैं, माइक खोलने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका माइक ओपन नहीं हो रहा। आशिफ भाई, हम किसी और जी से प्लीज, बोल सकते जी प्लीज, कैसर सरदार हमारे साथ हैं। हैं? जी। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे, और मैं खुदा के खादिम कैसर सरदार से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें आज की दुआ में लीड करें। कदूस कदूस मेहरबान सच्चे जिंदे आसमानी बाप, इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, खुदा तेरा शुक्र हो आज की इस मीटिंग के लिए खुदावन के तूने हमारी जिंदगी में बख्श दी कि खुदावन हम बाहम मिलकर तेरी रफाकत में खुदावन बैठें, खुदावन तेरे बारे में खुदावन खुदा एक दूसरे से सीख सकें। इस बात के लिए तेरा शुक्र हो खुदावन। सारा दिन तूने मदद और इबादत की खुदावन, इस बात के लिए तेरा शुक्र हो खुदावन। आज हमारी बहन ने जो अपने थॉट शेयरिंग की खुदावन, उसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस सारी मीटिंग के लिए खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन।
खास तौर पर बहन जो मीटिंग को प्रिजाइड कर रही हैं, खुदावंद लीड कर रही हैं, खुदावंद तेरी उस बेटी के लिए खुदावंद खास तौर पर दुआ करते हैं कि खुदावंद खुदा तू उसको भी रहनुमाई और अपने रूह कुदरत के साथ है खुदावंद को गाइड करना खुदावंद। ए खुदावंद तमाम बातों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ए खुदावंद खुदा इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ होना खुदावंद। ए खुदावंद कलाम सुनने में खुदावंद तो हमें बरकत देना खुदावंद, रहनुमाई करना खुदावंद, अपने कादम को इस्तेमाल करना। और ए खुदावंद इसी तरह जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं और खुदावंद जो किसी वजह से नहीं आ सके खुदावंद, उन सबको बड़ी बरकत देना खुदावंद। ये मीटिंग हमारे लिए बड़ी बायसे बरकत है खुदावंद। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। अभी वक्त है कि हम खुद को खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार करें। हमने प्रस्तिश की, हमने थॉट शेयरिंग को सुना, हमने शुक्रगुजारी की, दुआएं की खुदावंद के हुजूर, लेकिन अभी वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज को सुने। सो आए हम अपने आप को तैयार करेंगे और मैं भाई मनाहम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें दुआया कोर्स में लीड करें ताकि हम खुद को रूहानी तौर पर जो है वो खुदा के कलाम के लिए तैयार कर सकें। मसीह में आपका कलाम हम कोर्स गाएंगे। तेरा जमाने में है खुदावंद, तेरा कलाम जमाने में है खुदा, तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा, देखा के रहा जिस भी रूप में असर देखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में ए खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में ए खुदा बंदा, ना था वजूद किसी शय का जब जमाने में, ना था वजूद किसी शय का जब जमाने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में ए खुदा बंदा, ए खुदा बंदा, ए खुदा बंदा, आमीन। नाइला आप म्यूटेड हो।
ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے آج کے کلام کے لیے اور خدا کی بندی کے لیے. آج کا کلام ہے. میں ریکویسٹ کروں گی سائمہ جوڑ سے کہ وہ آج دعا کے ہمارے تاکہ خدا تاکہ خدا کا کلام ہم کے لیے باعث برکت ہو. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر، تیری طرف تیری تنقید، تیری سب بزرگ آسمانی باپ تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ تم ساری ہم ستائش کی تعریف کے لائق خداوند. ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج شام کے لیے خداوند تو نے پھر سب میں وقت دے دیا کہ ہم مل بیٹھ کر تیری ستائش کر سکیں اور تیرے قوانین کو سیکھ سکیں. قادر جو الفا اومیگا ہے جو آنے والا ہے قادر خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہے فسادوں میں سچا خدا خدا. ہمارے سر تیری حضوری میں جھکے ہوئے ہیں اور تیرا کبھی دونوں ساتھ ایک ایک زندگی خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور خدا ہم اپنے آپ کو خالی کرتے تیری حضور میں چھپا دیتے تاکہ تیرا کلام ہماری زندگیوں میں اترتا کرتا جائے. اور ہم 30 گنا نہیں 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا آج کا کلام خدا ہماری زندگیوں میں جلتا کا پھل لے کر آئے. قادر مطیع خدا ہماری زندگیوں سے ہمارے بدنوں سے صرف اور صرف خدا یسوع تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملتا رہے. قادر مطیع خدا تیری بیٹی کو خدا مندہ جس کے پاس تیری آج زندہ آواز ہے خدا مند اس کو تیرے پاک ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں. خدا مند تو اپنی بیٹی کا زور بن جانا قادر مطیع خدا اور خدا مند اپنی ساری حکمت دانائی سے اپنی بیٹی کو استعمال کرنا. خدا مندہ تو بخش دینا خدا مند اس کو کہ خدا مند وہ تیرے قوانین کو خدا مند ایک طور سے خدا مند ہماری زندگیوں تک پہنچائے. اور خدا مند آج جتنی جانوں نے خدا مند تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے خدا مند آج تو سب کی زندگیوں میں اپنے کلام کے وسیلہ سے خدا مند تو کام کرنا. قادر مطیع خدا تیرا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا ہے. قادر مطیع خدا اور خدا مند اسی طرح سے ہم سبوں کا ایمان ہے کہ آج کا کلام ہر ایک جان کے لیے ہر ایک بدن اور روح کے لیے خدا مند ایک تازگی ایک نئی زندگی لے کر آیا ہے. قادر مطیع خدا تیرا شکر ادا کرتے کہ تو شروع سے لے کے اس وقت ہمارے ساتھ رہا اور اسی طرح سے خدا مندہ باقی ماندہ وقت میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا تاکہ ہم تیرے کلام پر توجہ کریں اور بھلائی کو دیکھنے والے بن جائیں. قادر مطیع خدا تیری بیٹی کو ایک دفعہ پھر سے تیرے پاک روح کے مسا کے نیچے دیتے. خدا مندہ تیرے پاک روح کو کثرت سے اس کے لیے مانگ لیتے لفظوں کی ترتیب مانگ لیتے تیری حکمت اور دنائی مانگ لیتے. خدا مندہ تو اپنی بیٹی کو خدا مند اپنے جلال کے لیے آج کثرت سے استعمال کرنا. یہ دعا مانگتے تیرے پوتر جلالی یسوع نام سے آمین. آئے ہم زوردار تالیوں کے ساتھ خدا کی خاتمہ کو اور آج کے کلام کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کو فون کرو. تھینک یو. گاڈ بلیس یو آل. خداوند کی نہایت شکر گزار ہوں آج کی اس شام کے لیے جس میں خدا نے ہم سبوں کو ایک دفعہ پھر اپنے حضور میں جمع ہونے کا فضل دیا ہے اور ہمیں سب کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اور کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو خدا کے حضور میں تیار کر سکیں. آئیے ہم اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے جیسا کہ تلاوت کی گئی ہے پالوس رسول کا خط تسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیات کو ہم نے ابھی تلاوت کیا ہے. اور ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا مفہوم جو ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے. آج ہم نے کلام مقدس میں سے جو حصہ سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے پالوس رسول نے تسلنیکی کی کلیسیا کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ان کو نصیحت کی ہے ان کو سکھایا ہے کہ تمہارا چال چلن کس طرح کا ہونا چاہیے اور ان کو یہ بھی بتایا ہے اور ان کو یہ یاد دہانی کروائی ہے کہ تمہیں خدا نے اپنی بادشاہی اور جلال میں اپنے لیے بلایا ہے. آج
हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से कि खुदा ने हम सबों को अपने पास बुलाया है, हम सबों को अपना नाम दिया है, हम उसके नाम से कहलाते हैं, हमारे नाम के आगे मसीही लगा है और हम मसीह के नाम से कहलाते हैं। और हमारा ये आज़्म है कि हमने खुदा के कलाम को मुख्तलिफ लोगों तक जो खुदा से दूर हैं उन तक हमने खुदा के कलाम को लेकर जाना है। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को हम दूसरों तक लेकर जाएं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि खुदा ने हमें क्यों बुलाया है। खुदा ने हमें जो खिदमत बख्शी है, उस खिदमत को खुदा के हजूर में सर अंजाम देने के लिए हमारा तौर तरीका, हमारा चाल चलन खुदा की हजूरी में कैसा होना चाहिए। क्योंकि खुदा ने हर एक उस शख्स को जो मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है, जो खुदावन यीशु मसीह को ये मानता है कि उसने उसके गुनाहों का कुफारा दिया है और उसके वसीला से उसने गुनाहों से निजात पाई है और अब वो उस बादशाही में शामिल होने को है जो उसके लिए तैयार की है। तो उस बादशाही में दाखिल होना और उसके जलाल को अपनी जिंदगी में महसूस करने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारी मसीही जिंदगी का चाल चलन क्या है और हम किस तरह से चल रहे हैं। हम कायदा से चल रहे हैं या बेकायदा चल रहे हैं? हम क्या खुदावंद के उन कवानीन के मुताबिक चल रहे हैं जो उसने हमारे लिए तय किए हैं, जो उसने हमारे लिए बनाए हैं, या हम भी उन गैर ईमानदारों की तरह, उन लोगों की तरह जो खुदा से दूर है, क्या हमारा चाल चलन भी वैसा ही है? सिर्फ ये फर्क है कि हम इबादत को खुदा के हुजूर में गुजरानते हैं, हम प्रस्तिश करते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम रोजा रखते हैं, लेकिन क्या हमारे तौर तरीके खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं है? क्योंकि बहनों और भाइयों, मसीही जिंदगी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमने किस राह पर चलना है, हमने कौन सा तरीका अपनाना है। क्योंकि पालूस रसूल ने यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ दूसरे बाब में हमें ये सिखाया है, हमें नसीहत दी है, और उन ईमानदारों को जो कि खुदा के कलाम के मुताबिक चलते थे, जो अपना चाल चलन मसीह में दुरुस्त रखे हुए थे, उनको दिलासा दिया और उनको याद दहानी करवाई है कि तुम खुदा की बादशाही के लिए बुलाए गए हो, तुम खुदा के जलाल के लिए बुलाए गए हो। लेकिन अगर हम देखें ऊपर वाली आयत दूसरे बाब की, अगर हम देखें चौथी आयत, तो वहां पर लिखा है, बल्कि जैसे खुदा ने हमको मकबूल करके खुशखबरी हमारे सपुर्द की, वैसे ही हम बयान करते हैं, आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए जो हमारे दिलों को आजमाता है। जब हम मसीही जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि क्या हमने जो खिदमत करने का जो अज़्म लिया है, जो हमने खिदमत करने का फैसला किया है, जो हमने ये सोचा है कि हम खुदा की खिदमत करेंगे और खुदा ने हमें बुलाया है, तो क्या हम इससे किसी इंसान को खुश करने के लिए हम इस टीम का हिस्सेदार हुए हैं, या हम अपनी जरूरतों के लिए हम इस टीम के हिस्सेदार हुए हैं? क्या हम इसलिए इसके हिस्सेदार हुए हैं कि हमें इस जमीन पर रहते हुए किसी ना किसी मिनिस्ट्री के साथ जरूर चलना है? ये देखने की जरूरत है हमें, क्योंकि यहाँ पर पालूस रसूल ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उसने कहा कि आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए जो हमारे दिलों को आजमाता है। क्योंकि हमारा जो खुदा है वो इल्म कुल है, जिसके पास दुनिया के सारे इल्म है, उसके पास वो हर एक चीज है जो हमारे पास नहीं है। हम तो दूसरे इंसान की दिल की बातों को, उनके ख्यालों को हम नहीं जान सकते, लेकिन हमारे खुदा में ये सिफ्त है कि वो हर एक इंसान के दिल का हाल जानता है। वो हर एक इंसान के बारे में बखूबी वाकिफ है कि किस शख्स के दिल में क्या बात है, वो क्या लेकर खुदा की खिदमत के लिए आगे बढ़ा है, उसके दिल में
क्या ख्वाहिश है खुदा की खिदमत के लिए, उसके दिल में मसीही होने का जो जज्बा है वो किस कदर मजबूत है और किस कदर कमजोर है, खुदा जानता है। और खुदा ये भी जानता है कि क्या हम आदमियों को खुश कर रहे हैं या हम खुदा को खुश कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें मसीही जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि कलाम हमें ये बताता है, पालूस रसूल ने हमें बताया है, 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको मालूम ही है कि ना कभी हमारे कलाम में खुशामद पाई गई। क्योंकि अगर हम खुशामद करते हैं, पालूस रसूल ने बड़ी खूबसूरती से बताया है कलीसिया को, ईमानदारों को, कि मैं किसी की खुशामद नहीं करता हूं, मैं खुशामद के जरिया से अपनी इस कलीसिया को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, मैं कलीसिया को आगे लेकर नहीं चलना चाहता, ना लालच के तहत, ना लालच को पर्दा बनाना चाहता हूं कि मैं लालच के साया में मैं अपनी खिदमत को जारी रखूं। क्योंकि पालूस रसूल का भी खिदमत करने का जो मकसद था, उसका मकसद ना तो किसी की खुशामद करना, ना खुशामद को रिसीव करना, और ना ही किसी वो लालच के तहत खुदा की खिदमत कर रहा था। क्योंकि वो खिदमत कर रहा था तो सिर्फ इस गर्ज से खिदमत कर रहा था कि खुदा ने जबकि मुझे बुलाया है, जबकि उसने मेरा नाम चेंज किया है, जो कि एक बहुत बड़ा लीडर है, और जब खुदा की कुदरत पालूस रसूल की जिंदगी पर जाहिर होती है, जो कि साउल था और बाद में वो पालूस बन गया, और हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी जब तब्दील हुई है तो उसने उस तब्दीली को जाहिर करते हुए, क्योंकि उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, वो किसी लालच के तहत खिदमत में नहीं आया, वो किसी खुशामद की गर्ज से वो इस खिदमत में नहीं आया। और वो कहता है कि जब मैं इस गर्ज से खिदमत में नहीं आया तो मैं इस गर्ज से खिदमत नहीं कर रहा कि मैं किसी की खुशामद करूं या मैं किसी को कोई लालच दूं। तो फिर आगे लिखा है कि खुदा इसका गवाह है, और वो खुदा की उस सिफ्त को, उन सफात में से एक सिफ्त कि खुदा जो दिलों के हाल जानने वाला है, जो आजमाता है, जो हमारे दिलों को परखता है, जो हमारी जांच करता है, हमारी पड़ताल करता है, जो हमें तौलता है कि क्या हम उसके मयार पर पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। अगर हम उसके मयार पर पूरे उतरते हैं तो वो हमारी खिदमत को बाबरकत बनाता है, और अगर हम उसके मयार पर पूरे नहीं उतरते तो वो हमारी खिदमत को बाबरकत नहीं बनाता, क्योंकि हम उस तरह से खिदमत नहीं कर रहे होते जिस तरह से हमें करनी चाहिए। क्योंकि पालूस रसूल बड़ी खूबसूरती से हमें ये सिखाते हैं कि और हम ना आदमियों से इज्जत चाहते हैं ना औरों से। खिदमत का जो जज्बा है वो इज्जत के लिए नहीं है, क्योंकि खादम की इज्जत इंसानों की नजर में जरूरी नहीं है कि कोई इंसान खुदा के खादम की इज्जत करे, क्योंकि खुदा के खादम की इज्जत खुद खुदा करता है। क्योंकि लिखा है जो खुदा की खिदमत करता है खुदा उसकी क्या करता है, इज्जत करता है। तो खुदा तो अपने खादम की खुद इज्जत करता है, और खादमों को इस बात की जरूरत नहीं है कि उसकी इज्जत की जाए, क्योंकि खादमों के लिए ये जरूरी है कि वो खुदा के वो तमाम कवानीन, खुदा के वो तमाम तौर तरीके जो खुदा ने कलाम मुकद्दस में से उसको सिखाए और वो दूसरों को सिखाए, जिसमें खुशामद नहीं है, जिसमें लालच नहीं है, जिसमें हसद नहीं है, और जिसमें ये जरूरत नहीं है कि वो इज्जत को ही आगे लेकर चले, कि अगर इज्जत हो तो वो खिदमत करे, अगर किसी शहर में जाए तो वहां पर उसकी इज्जत हो तो वो फिर उस शहर में जाए, अगर इज्जत ना हो तो वो उस शहर में ना जाए। हमारा मकसद जो है वो ये है कि हम खुदा की मनादी, जो खुदा के कलाम को जो हमें दिया गया है, कि हम उसको साफ साफ तौर पर खुदा के हुजूर में पेश करें, उसके लिए हमें लायक होना है, हमें अपने चाल चलन में लायक होना है, हमें अपने तौर तरीकों में लायक होना है। हम लोगों को जिन्होंने ये अहद किया है कि हम खुदा की खिदमत करेंगे, हमें बेकायदा नहीं चलना, बल्कि जो लोग बेकायदा चल रहे हैं हमने उनको भी राह रास्त पर लाना है, हमने उनको उनकी वो राह दिखानी है जो खुदा ने उनके लिए तैयार की है। क्योंकि कलाम हमें ये हुक्म देता है
अगर हम देखें दूसरा थस्सलुनीकियों उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत, तो वहां पर लिखा है कि हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से किनारा करो जो बेकायदा चलता है। हम मसीही भी होते हैं, हम खुदा के खादम भी होते हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग बेकायदा चल रहे होते हैं हम उनके साथ साथ भी होते हैं। हालांकि कलाम हमें ये सिखाता है कि हाँ की जगह पे हाँ करो और ना की जगह पे ना करो। जो चीजें कलाम मुकद्दस के अगेंस्ट है हम उनके खिलाफ जाएं। जो कलाम मुकद्दस की फेवर में जो चीजें हैं, जो कलाम हमें सिखाता है कि हम उसके मुताबिक चलें, हमें उसके मुताबिक चलने की जरूरत है। हमें हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करनी है। और वो लोग जो बेकायदा चल रहे हैं उन्हें भी हमने राह रास्त पर लाना है। ये भी हमारा काम है। हम पहले खुद अपना चाल चलन दुरुस्त करें और फिर हम दूसरों को खुदा के पास लाएं। क्योंकि हम देखें, अगर पालूस रसूल कहते हैं कि फिलिपियों के खत में वो कहते हैं 3 बाब की अगर हम 17वीं और 18वीं आयत देखें तो वहां पर लिखा है, कुछ लोग अपना चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन, और उनका अंजाम कैसा होता है? हलाकत होता है। क्योंकि उनका खुदा क्या है? उनका खुदा पेट है। वो अपने पेट के लिए मुनादी करते हैं कि हाँ जी चलें जी, ठीक है जी, हमने मनादी करनी है। तो हम क्या करते हैं कि हम मिनिस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं, हम खुदा की खिदमत को अपना जरिया बना लेते हैं। जब हम इस गर्ज से हम खिदमत करते हैं कि हमने अपना पेट भरना है, हमने अपने पेट को भरने के लिए मनादी करनी है, हमने किसी के घर में विजिट करना है, हमने किसी इलाका में जाकर कलाम सुनाना है, तो वहां पर हमें अच्छे खासी हमें रकम मिलनी चाहिए और वो रकम से हमारे खर्चे पूरे होने चाहिए। हमारी एक्स्ट्रा, हमारी वो तमाम चीजें, जो ख्वाहिशात जो हम दिल में रखते हैं, हम उनसे पूरा करते हैं। तो कलाम हमें ये बताता है, पालूस रसूल कहते हैं कि वो लोग इस तरह से है जिनका जो पेट है वो खुदा है। वो अपने पेट के लिए खिदमत कर रहे हैं, वो खिदमत इस गर्ज से कर रहे हैं। उनका चाल चलन जो है वो खुदा के हजूर में दुरुस्त नहीं है। और ऐसा बिहेव करने वाले, इस तरह से खुदा की खिदमत करने वाले जो हैं वो खुदा की खिदमत उस तरह से नहीं करते जिस तरह से उनको करनी चाहिए। और फिर यकीनन अगर हम कलाम में देखें तो हमें ये मालूम होता है कि ऐसे लोग जो इस गर्ज से खिदमत करते हैं वो खुदा की नजर में मकबूल नहीं ठहरते। और हम जो बात खुदा की बादशाही के दावेदार हैं, हम किसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? हम ये सब खिदमत, खुदा के कलाम की खिदमत को पेश करना, इबादत को अटेंड करना, इबादत में शामिल होना और दुआओं को खुदा के हुजूर में पेश करना, मुनादी करना, ये किस लिए है? इसलिए है कि हम खुदा की बादशाही के हिस्सेदार हो सके, खुदा की बादशाही में शामिल हो सके, खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। लेकिन अगर हमारी रवशें दुरुस्त नहीं है, अगर हमारे तौर तरीके दुरुस्त नहीं है, हमारा कलाम को पेश करने का तरीका दुरुस्त नहीं है, जिस तरह से आम लोग चल रहे हैं, जिस तरह से आम लोग खिदमत कर रहे हैं, क्या अगर हम उस तरह से खिदमत कर रहे हैं तो फिर हम खुदा की बादशाही में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि मत्ती की अंजील में बड़ी खूबसूरती से खुदावंद यीशु मसीह ने हमें तमसील के जरिया से समझा दिया है। उसने बताया, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उस वक्त बहुत से लोग आकर मुझे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला है, हमने तेरे लिए ये काम किए हैं। वो कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जो खुदा की खिदमत करते हैं, जो खुदा का काम कर रहे हैं। उस दौर में भी जब खुद मसीह यीशु ने तमसील कही तो उस वक्त भी हम देखते हैं कि वहां पर यहूदी लोग जो शरीयत के आलिम थे, जो फरीसी लोग जो खुदा के कलाम की बड़ी अच्छी तरीके से उससे वाकफियत रखते थे और मनादी करते थे, उनके लिए भी ये तमसील कही गई कि वो आकर मुझे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से तो बदरूहों को निकाला है, हमने तो ये काम किया है, हमने वो काम किया है। लेकिन मसीह यीशु क्या कहेंगे? वो कहेंगे मुझे तुम्हारे साथ कोई वाकफियत नहीं है। क्यों नहीं वाकफियत है? वो क्यों नहीं हमें जानता? वो क्यों नहीं हमें पहचानता? क्योंकि हम लोग बेकायदा चलते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम
खुदा की बादशाही के हिस्सेदार हों और बहुत से लोगों के लिए फायदा मंद हो, तो हमें अपनी रविशों को दुरुस्त करना है। हमें हाँ की जगह पर हाँ करनी है और ना की जगह पर ना करनी है। हमें इज्जत के लिए जो है वो खुदा के कलाम की मनादी नहीं करनी। हमें इसलिए कलाम की मनादी नहीं करनी है कि हमें बहुत ज्यादा वाफर मिकदार में हमें पैसा मिले। हमें इसलिए मनादी नहीं करनी है कि हम लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है खुशामद हमारी की जाए, हमारी तारीफें की जाए, हमारे हर जगह पर हमारे चर्चे हों। हमें इसलिए मनादी नहीं करनी है। हमें इसलिए मनादी करनी है कि वो लोग जो गुनाह में धंसे हुए हैं, जो बीमारियों में धंसे हुए हैं, जो तकलीफों में धंसे हुए हैं, जो मुख्तलिफ तरह की परेशानियों में जो फंसे हुए हैं, उन्हें हमें उनकी परेशानियों से, तकलीफों से, मुसीबतों से हमें निकालना है। हमें उनके दुखों का अजाला करना है। हमें उनकी परेशानियों को दूर करना है। हमें उन लोगों को जो गुनाह की दलदल में रोज बरोज फंसते जा रहे हैं, हमें वहां से उनको निकालना है। और हम उनको किस तरह से निकाल सकते हैं? हम अपने चाल चलन के जरिया से हम उनको निकाल सकते हैं, बेहतर चाल चलन के जरिया से। हमें उस चाल चलन के जरिया से जो खुदा ने हमें सिखाया है कि हमें किस तरह से चलना है खुदा की हुजूरी में। हमें अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है। हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना है। जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं उन्होंने हमें ये सिखाया है, पालूस रसूल ने हमें ये सिखाया है। अगर हम देखें रोमियो 12वां बाब उसकी दूसरी आयत, तो वहां पर क्या लिखा है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। हमें क्या करना है? हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना है जो दुनिया कर रही है। अगर हम मसीही हैं, हम खुदा के खादिम हैं, हम खिदमत करने वाले हैं, हम परस्तार हैं, हम एवेंजलिस्ट हैं, हम मनादी करने वाले हैं, हम जो है वो मिनिस्ट्री में कोई भी ओहदा रखते हैं, हम खुदा की खिदमत के लिए कोई भी काम जो है हम खुदा के हुजूर में पेश कर रहे हैं, तो हमें जहान की तरह नहीं होना है। जो जहान काम कर रहा है हमने वो काम नहीं करना है। हमने उनकी मानद नहीं बनना है, बल्कि हमने अपने आप को तब्दील करना है। हमने अपनी शक्लों को तब्दील करना है। हमने अपने तौर तरीकों को बदलना है। हमने अपनी जो गुफ्तगू है उसका अंदाज बदलना है। हमने अपने पहनने ओढ़ने के जो सलीके हैं उनको तब्दील करना है। जिस तरह से आम लोगों का पहनावा है, हमने उस तरह से अपने पहनावे को नहीं रखना, सॉरी, बल्कि हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने अपने आप को यीशु मसीह की मानद बनाना है। जिस तरह से मसीह यीशु ने जमीन पर रहते हुए अपनी खिदमत को सरअंजाम दिया, वो रोल मॉडल है हमारे लिए कि वो भी बदल लेकर इस जमीन पर आए थे। उन्होंने जिस तरह से गाली के बदले गाली नहीं दी, उन्होंने अपने सताने वालों को, जो उसको सता रहे थे, उन्होंने उनको उस तरह से उनके साथ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उनके लिए बरकत चाहिए। उन्होंने तकलीफ में ये नहीं कहा कि अब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि उन्होंने खुदा की मर्जी को पूरा किया। बाजुकात जब हमारी जिंदगियों में मुसीबतें आती हैं, दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, जब हम एक दूसरे से हर्ट होते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि हम लोग क्या सोचते हैं? हम कहते हैं अच्छा ये भी मसीह का खादम था, ये भी खादम है, इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया है, तो फिर क्या फायदा मुझे खिदमत करने का? खुदा के खादम भी ऐसे ही होते हैं। हम एक दूसरे से हर्ट हो जाते हैं। हमें हर्ट नहीं होना। हम लोगों ने मोहब्बत के साथ, हमने जिस तरह से मसीह यीशु ने इस दुनिया से मोहब्बत रखी, उसी तरह के हमने मोहब्बत अपने दिल में रखनी है और उसी मोहब्बत में आगे बढ़ना है। हमने अपने आप को खुदा के लायक बनाना है और वो सारे काम करने हैं जो खुदा ने हमें सिखाए हैं। और जब हम इस तरह से अपनी जिंदगी को खुदा के हुजूर में गुजारेंगे, तो यकीनन हम बहुत से लोगों के लिए बाइसे बरकत होंगे। हम बहुत से लोगों को जो बेकायदा चल रहे हैं, हम उनको
جو ہے ہم اس راہ پر لے آئیں گے جو خدا نے ان کے لیے تیار کی ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں زبور نویس کہتا ہے زبور 50 اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا. جو شخص بھی اپنا چال چلن درست رکھتا ہے, چاہے وہ خادم ہے, چاہے وہ عام شخص ہے, چاہے وہ پرستار ہے, چاہے وہ کوئی بھی خدمت سر انجام دے رہا ہے, اگر وہ اپنا چال چلن خدا کی مرضی کے مطابق درست رکھتا ہے تو خدا کا یہ اس سے وعدہ ہے کہ وہ اس کو اپنی نجات دکھائے گا, وہ نجات اس کو دے گا, وہ اس کو اپنی بادشاہی کا حصہ دار بنائے گا, وہ اس کی زندگی میں اپنے نام کو جلال دے گا اور اس کی زندگی سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے گا اور وہ بہت سی روحوں کے لیے فائدے مند ہوگا. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اپنے آپ پر غور کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے چل رہے ہیں, دناؤں کی مانے چل رہے ہیں یا نادانوں کی مانے چل رہے ہیں. آئیے آج اپنے آپ پر غور کریں اور اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق تیار کریں اور خداوند کے سانچے میں ڈالیں تاکہ خداوند کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. گاڈ بلیس یو. آمین. آج کے خوبصورت کلام کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے. آئے ہم زوردار تالیوں کے ساتھ خدا کے کلام کے لیے اور خداوند کی رہنمائی کے لیے اس کی شکر گزاری کریں. ابھی وقت ہے کہ ہم شفایت کریں اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت بیمار ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے. کوئی بھی پرابلم ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے دعا کی جائے. اگر آپ بیمار ہیں, آپ کی کوئی نیڈ ہے, آپ اپنی پریئر ریکویسٹ دے سکتے ہیں تاکہ خدا کے خادم جو ہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں. اگر نہیں تو میں خدا کے خادم بھائی عاشق کو دعوت دوں گی کہ وہ ہمیں آج کی شکر گزاری کی دعا میں لیڈ کریں. خدا کی خادمہ کے لیے دعا کریں اس خوبصورت کلام کے لیے جو آج ہم نے ان کے ذریعے سے سنا. خداوند ان کو برکت دے. آمین. I would like to make a request. Yes. Pastor Ashif, میری نانو ہے, مریم نام ہے ان کا, ان کے لیے پلیز پریئر کی ضرورت ہے. بیمار ہے اور ان کا گلا کافی خراب ہے, شی ایجڈ, اور یہ بزرگی کے عام میں ہے تو ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے, تو ان کے لیے پلیز دعا کیجیے گا. Yes, sure. صحت کے لیے. ہاللویا. خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت اس کلام کے لیے. آج ہم نے بہت ہی خوبصورت جو ہے کلام جو ہے وہ سنا ہے کہ کس طرح ہمارا چال چلن جو ہے وہ جو ہے درست ہونا چاہیے. اسی کے ایکچولی جو ہے ریلیٹڈ ہے کلام مقدس جو ہے پیدائش سے مکاشفہ تک ایک ہی چیز کا ذکر کرتا ہے, ایک ہی شخص کو بیان کرتا ہے, اور وہ ہے جو ہے یسوع المسیح. اور ابھی ہم جو ہے دعا کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے بیماروں کے لیے جو ہے دعا کریں تاکہ جو ہے بیمار اچھے ہو جائیں. اگر ہماری کوئی پرابلمز ہیں ان کو خدا ان کے سامنے لے کے آئیں. یہ بھی اسی بات کو بیان کرتی ہیں. یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل میں کہ تمہارا دل نہ وہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. ہماری جو ہے شفا کی جو ہے بنیاد ہے ایمان پر, کہ ہم کس طرح جو ہے خدا پر ایمان رکھتے ہیں. ہماری پیاری بہن نے آج بڑا خوبصورت جو ہے کلام کی جو آیت ہمارے ساتھ جو ہے پیش کی, جو متی کی انجیل اس کے 7ویں باب میں سے, مانگو تو تم کو جو ہے وہ دیا جائے گا. اور آج ہم اس حصے میں ہیں, انٹرسیشن کر رہے ہیں. ہم ابھی جو ہے شفایتی جو ہے دعا کرنے کو ہیں. جب ہم جو ہے شفایتی دعا جو ہے وہ کرنے کو ہیں تو اس کے لیے بیمار کا ایمان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. دعا جو ہے کرنے والے کا ایمان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم ایمان نہیں رکھیں گے تو ہم اپنے معجزہ کو, اپنی شفا کو, اپنی برکت کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم ایمان نہیں رکھیں گے. ایمان کا مطلب ہے سرنڈر جو ہے کر دینا. آپ سب لوگ ابھی کسی نہ کسی چیز پر جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو جو ہے سرنڈر جو ہے کیا ہوا ہے. میں ابھی اس چیئر پر ہوں, میں نے اس چیئر پر اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوا ہے. میں نے اپنے آپ کو نہیں جو ہے سنبھالا ہوا, مجھے اس چیئر نے جو ہے سنبھالا ہوا ہے. اسی طرح
आज जब हम अपनी जो है दुआओं को, मनाजात को, अपनी दरख्वास्तों को खुदा के सामने रखते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को खुदा के सामने पेश कर देते हैं मुकम्मल जो है वो तौर पर, उस तरह जिस तरह के जो है मरकज की अंजील में उस मफलूज की जो है एक हमारे पास एक मिसाल है कि उस जो है उस शख्स को उन्होंने जो है छत को खोल कर उसको जो है नीचे जो है उसको उन्होंने जो लटका दिया ताकि मसीह उसको जो है अच्छा जो है कर सके। ये मैं बात कर रहा हूं ईमान की, इसका ताल्लुक हमारी जो है हमारी जो शिफा के साथ है। जब तक हम खुदा पर मुकम्मल भरोसा नहीं रखेंगे हम शिफायाब नहीं हो सकते। चाहे कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा खादम भी आप आके आपके लिए दुआ जो है कर दे, आप जो है शिफायाब नहीं हो सकते। जो भी नॉन खादम है खुदा के, जिनकी जो है मिनिस्ट्रीज हीलिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से जो जानी जाती हैं, कोई भी आपके लिए दुआ कर दे आपकी जिंदगी में हीलिंग नहीं आ सकती जब तक आप खुद नहीं जो है मांगेंगे, जब तक आप खुद दरवाजा जो है नहीं जो है खटखटाएंगे। आइए मेरे साथ जो है मिलकर हम सब जो है मिलकर इस रखना के अंदर खड़े होंगे कि खुदावंद आज हमारे ईमान को मजबूत करे। आज हम थोड़ी सी जो है डिफरेंट तरीके से दुआ करेंगे। आज हम एक दूसरे के ईमान के लिए दुआ करें कि खुदावंद तू हमें ये फजल बख्श दे कि हम अपने आप को पेश कर सके, सरेंडर कर सके। जब तक हम अपने आप को मुकम्मल सरेंडर नहीं करेंगे हम अपनी जो है शिफा को, मौजजे को हासिल नहीं कर सकते। चाहे हम जितनी मर्जी जो है दुआएं कर लें, हमारा यहां पर इकट्ठा होना, दुआ करना, कलाम को जो पढ़ना, खुदा के जो है कलाम को जो है सुनना, उसके पीछे एक ही जो पर्पस है कि हम बरकत को पा सके। और अगर आज आप अपनी बरकत को पाना चाहते हैं, आइए मेरे साथ मिलकर जो है सरेंडर करें अपने आप को खुदावन पर जो है छोड़ें, अपने जो तवक्कल खुदावन पर रखें और दुआ करेंगे, मिलकर दुआ करेंगे सब। अगर आपके दिल में कोई दरख्वास्त है अपने उसको आप खुदा से बात करना शुरू करें। आज सबसे पहले हम सरेंडर करेंगे, मेरे साथ मिलकर आप भी अपने आप को, अपने घरानों को जो सरेंडर करें, अपने जो बच्चों को खुदा उनके सामने जो सरेंडर करें और बड़े के खून को अप्लाई करें। ये पैटर्न है शिफा पाने का, ये पैटर्न है खुदा के हुजूर जाने का। हालेलुया। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, आज शाम हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपने गुनाहों को तरक जो है करते हुए, अपने चाल जो है चलन को दुरुस्त करते हुए खुदा बाप तेरी पाक हजूरी में आते हैं। यीशु मसीह के वसीला से खुदा पाक रूह हम अपनी जिंदगियां तेरी हजूरी में सरेंडर कर देते हैं, तुझको दे देते हैं। तू हमें लीड कर, हम अपने ये बदन जो कुर्बान कर देते हैं, हम अपने बदन को हम अपने बदनों को खुदावंद खुदा तेरे सुपुर्द करते हैं। तू इनको शिफायाबी अता कर। आज शाम हम तुझसे मांगते हैं, अपनी शिफा को मांगते हैं, अपने मौजज़ा को मांगते हैं। एक खुदावंद के खुदा तू आज शाम हम में से हर एक को बड़ी बरकत दे, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक अजीज जिसके भी दिल में जो भी बात है, जो भी जो है बीमारी है, कमजोरी है, कमी है, यीशु के नाम में जाती रहे। यीशु के नाम में खुदावंद के खुदा तेरे ये लोग तेरे कलाम से भर जाए। तू अपने पाक रूह से अपने लोगों को इनॉइंट कर और हर तरह की जो बीमारी, हर तरह की जो कमी और कमजोरी यीशु और मसीह के नाम से जाती रहे। खुदावंद के खुदा ये बदन जो है वो तेरे हैं, क्योंकि हमने आज अपने इन बदनों को तेरे सामने सरेंडर किया है, पेश कर दिया है। खुदावंद आज हम तुझसे वादा करते हैं कि ये बदन तेरे खुदावंद खुदा जलाल का जो है बाइस हो। खुदावंद खुदा तू इस मकदस में जो है बसेरा कर, मेरे इस बदन में तो खुदावंद खुदा तू जो है बसेरा कर। मैं अपना पूरा कंट्रोल जो है तुझे जो है देता हूँ और देती हूँ। खुदावंद तू आज हमारी जिंदगियों में नया काम कर, शिफा हमारी जिंदगियों के अंदर ओवरफ्लो हो, हमारी जिंदगियों के अंदर मौजूद
معجزات ہو, مشکلات جاتی رہے, ہر طرح کی جو پریشانیاں جو ہے وہ جاتی رہے, مصیبتیں جاتی رہے, یسوع کے نام میں, یسوع کے نام میں خداوند خدا تو اپنے لوگوں کو ہیل کر بڑی برکت دے اور اپنے جلال سے معمور کر, اور خداوند خدا ہر ایک کو آج شام تو اپنی گواہی کے لیے اٹھا کھڑا کر, تو اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کر. تیرا شکر کرتا ہوں خداوند کو تیری خادمہ کے لیے جس کے وسیلہ سے آج تیرا پاک اور پوتر جو کلام آج ہم تک آیا ہے. تو خداوند اپنی بیٹی کو اپنے جلال سے معمور کر, اور خداوند خدا زمین کی انتہا تک اس کو اپنے کلام کی وسعت کے لیے استعمال کر. تیرا شکر کرتے ہیں تیری خادمہ کے لیے جس نے آج اپنی گواہی کو شیئر کیا ہے. اپنی بیٹی کو اپنے کلام کا فہم دے, اپنا فہم دے, اور خداوند خدا اس کو خداوند خدا زمین کی انتہا تک کثرت سے استعمال کر. خداوند خدا ان ورشپرز کو خداوند خدا میں تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو تیری حضوری میں نام بنام پیش کرتا ہوں, زمین کی انتہا تک ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر. خداوند کی خدا مسز جو ساجد کے لیے خداوند خدا میں تیری شفا کو, تیری برکت کو, تیری خداوند خدا پاکیزگی کو مانگتا ہوں. یسوع المسیح کے نام میں بڑی برکت دے. بھائی جانسن کے لیے, بھائی جو یونس کے لیے تیرا فضل تیری برکت مانگتے ہیں. اسی طرح خداوند خدا تیری جو بیٹی خداوند خدا مریم کو تیری حضوری میں لاتا ہوں, جو خداوند خدا اپنے بزرگی کے خداوند خدا عالم میں ہے, خداوند خدا اس سٹیج پہ ہے جہاں پر خداوند تو ہی اس کو سنبھال سکتا ہے, تو ہی اس کی مدد کر سکتا ہے, تو ہی خداوند خدا اس کی خداوند خدا پناہ گاہ ہے. خداوند کے خدا اپنی بیٹی کو تسلی اطمینان دے. خداوند خدا اس کی زندگی کے ایام میں خداوند خدا اس کو جو تسلی اور اطمینان عطا کر, ہر طرح کی جو درد سے, ہر طرح کی جو بیماری سے خداوند خدا تو اس کو جو سنبھال. تیری پاک مرضی تیری بیٹی کی زندگی میں جب پوری ہو یسوع کے نام میں خداوند خدا تیرا فضل, تیری رحمت, تیرا خداوند خدا رحم مانگتا ہوں پورے خاندان پر. خداوند خدا اپنی خداوند خدا بیٹی کو چھو اور بڑی برکت دے, پورے خاندان کو بڑی برکت دے, بھائی ایمینویل کو بڑی برکت دے, ہماری خداوند کو بہن کو بڑی برکت دے. یسوع کے نام نے ہر ایک زندگی کو, ہر ایک گھرانے کو بڑی برکت دے. خداوند خدا تیری بیٹی نائلہ کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں جس نے آج میٹنگ کو پریزائیڈ کیا ہے. خداوند خدا اس کو بھی زمین کی انتہا تک اپنے جلال سے معمور کر. اسی طرح تمام تر خادموں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں, ویورز کی پوری ٹیم کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں. خداوند خدا اپنے لوگوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر زمین کی انتہا تک کثرت سے استعمال کر. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند خدا منسٹری کے تمام تر جو پروجیکٹس کو تیری حضوری میں لاتا ہوں. خداوند خدا تیری برکت, تیرا رحم, تیرا فضل مانگتا ہوں. روپے پیسے کی ہر ایک ضرورت تیرے یسوع کے نام میں جو ہے خداوند خدا وہ پوری ہو. تو اپنے جلال کے لیے اپنے لوگوں کو استعمال کر. خداوند خدا آؤٹ ریچ کے جو ہے پلان میں خداوند میں تیرا فضل, تیری برکت مانگتا ہوں. خداوند خدا تمام تر کام تیری پاک مرضی کے وسیلہ سے وقوع پذیر ہو اور تیرا نام عزت اور جلال پائے. ہم گھٹے اور تو بڑھے, ہم گھٹتے جائیں اور تو بڑھتا جائے. ہماری زندگیوں کے اندر, ہمارے خاندانوں کے اندر, ہمارے گھرانوں کے اندر تیرا نام عزت اور جلال پائے. میرے ساتھ مل کر سب اپنے اپنے جو بچوں کو خداوند کے حضور لائیں, ان پر بڑے کا لہو اپلائی کریں. خداوند کے خدا ہم اپنے بچوں کو تیری حضوری میں لاتے ہیں. خداوند کے خدا تیرے پاک لہو کو اپلائی کرتے ہیں ان کی زندگیوں پر. تیرے لہو کو مانگتا ہوں. خداوند خدا آئزک کو تیری حضوری میں لاتا ہوں. خداوند تو اس کی ہر ایک کمی کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میں تیری حضوری میں خداوند تیری پاک حضوری میں محنت کرتا ہوں. تو اپنے بیٹے کو شفا یابی عطا کر. خداوند کو اسی طرح تمام تر نوجوانوں کو, یوتھ کو تیری حضوری میں لاتا ہوں. خداوند خدا تو ان کو اپنی جو پاکیزگی دے, اپنا کلام دے, اپنا رحم انڈیل دے ان کی زندگیوں کے اندر یسوع کے نام میں. خداوند کو ان کو اپنا فہم دے, ہر طرح کی جو برائی سے بچا کر محفوظ رکھ. میں تیرے کلام کی, تیرے پاک روح کی, تیرے خون کی پروٹیکشن کو اپلائی کرتا ہوں تیرے بچوں پر. خداوند خدا تیری برکت اس کلیسیا کے اندر, ان گھرانوں کے اندر, ان خاندانوں کے اندر آئے اور تیرے نام کے لیے کثرت سے استعمال ہو. لیٹس ریسیو ہم جو ہے خداوند کی اس برکت کو حاصل کریں جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہے.
आसमानी बाप, यीशु के नाम में मैं प्रॉस्पेरिटी को क्लेम करता हूं। तेरे लोगों की जिंदगियों के अंदर जो कारोबार कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, खुदा तू हर एक को बड़ी बरकत दे, इनके रोजगार में इनको बरकत दे, खुदा इनके रोजगार को 100 गुना इंक्रीज कर, ताकि ये तेरे जलाल में सर्व हो। खुदा ये रुपया पैसा जो तू इनको दे, खुदा ये उसमें से तेरी खिदमत के लिए जो सर्व करे, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हम सबको ये फजल बख्श दे खुदा। मैं इस कलीसिया पर, बीएसओ की खुदा मैं पूरी टीम पर खुदा मैं तेरी बरकत को, प्रॉस्पेरिटी को क्लेम करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तमाम खानदानों को, खादमों को आपके शोले बनाकर इस्तेमाल कर। खुदा मैं पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे आउटरीच के मंसूबे हैं उनको तेरी हजूरी में लाता हूँ। खुदा तू खुदा अपने पाक रूह की गाइडेंस से खुदा उनको खुदा तू हमें जो लीड कर, और खुदा ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, और तू खुदा भरता जाए और हम सब जग घटते जाए। पूरी टीम पर, बोर्ड पर, खुदा उनको तमाम तरह एवेंजलिस्ट पर, पास्टर्स पर तेरा फजल, तेरी बरकत मांगता हूँ। तमाम जो पार्टनर्स पर तेरा फजल, तेरी बरकत मांगता हूँ। यीशु अल मसीह के नाम में मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं। और जिसने हमें कहना जो है सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा वो तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, हमारे तमाम तरह घरानों के साथ, वीयूएस की पूरी जो टीम के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे।